Hello everyone, I Prashant Sharma welcome you all to my YouTube channel. In this video, I will tell about the temperature and heat. In previous video, I had taught you about the property of water and chemistry of water. So, in the property of water, I have discussed about the cohesion and adhesion, and in previous video only discussed about the cohesion and adhesion, and in next videos I will discuss about the ability to moderate temperature, expansion upon freezing, and versatility as a solvent. Means this is the property of the water, and also I have discussed about the chemistry of water and type of molecules, and why the water molecule have these properties. So I have discussed earlier. Okay, so but in this video I will tell about the temperature and heat. Actually this is the different from the topic, but it is necessary to know about the temperature and heat to discuss about the next characteristic of feature of the water. Okay, so in this video I will tell about the temperature and heat. Okay, many peoples are confused in that in two words, what is the temperature and what is the thermal energy. So we will discuss in this video about the thermal energy and temperature. Okay, so let's start. So first of all I will tell about the two words, kinetic energy and potential energy. Okay, these words are linked with the thermal energy. Okay, so I would like to tell you first about the kinetic energy. So there are two type of energy. One is the two type of energy. One is the kinetic energy, and second is the kinetic energy Ke, and second is the potential energy. Okay, I am representing here with Ke and Pa. Okay, so kinetic energy is the if we see the formula of this kinetic energy, it is half mv square 1/2 mv square. M is mass and v for velocity. Okay, and potential, the formula of potential energy is the mgh. Okay, actually I am not going to in deeply, so I linked the physics with the chemistry. Okay, I am linking the physics with the chemistry. मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिंक करूँगा किससे, इसकी प्रॉपर्टी से और काइनेटिक एनर्जी से, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द दिस फार्मूला ऑन काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो ओके, तो फर्स्ट लाइन इन दिस स्लाइड इज द एनीथिंग दैट मूव हैज काइनेटिक एनर्जी. ओके, मतलब कोई भी चीज़ है जो कि मूव करती है, मूव मतलब चलती है, फिरती है, वो क्या है, उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करती है. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ मोशन. ओके, सो वी कैन सी इन दिस फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वेयर. ओके, ये फॉर्मूला में भी दिखता है जैसे कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास है और वो उसकी कोई वेलोसिटी है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को. ओके, यदि बोल सके इफ द पार्टिकल डू नॉट हैव द वेलोसिटी, मीन्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑल्सो 0. ओके, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी. ओके, मतलब अपन इसको रखेंगे
उसका कोई मास है और वेलोसिटी क्या है 0, देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0. ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन प्रूव द दिस लाइन. ओके, मतलब कोई भी चीज़ है हम कह सकते हैं कि यह जो फॉर्मूला है इस लाइन को प्रूव कर रहा है कि कोई भी चीज़ यदि मूव करती है उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है. मतलब पार्टिकल की पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन से यदि किसी दूसरी पोजीशन पे ले जाया जाता है तो उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी. सपोज इफ द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल एंड आई पुट दिस पार्टिकल फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, so the distance between the 2 points is d. Okay, then the potential energy of this particle here is mg d. Okay, d for the distance between 2 point of the particles. मतलब जो पहले a पॉइंट पर था उसको मैंने उठा करके कहाँ पर रख दिया, b पर. ओके, तो इन दोनों के जो पॉइंट हैं, जो इसकी पोजीशन थी, उनमें जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे d. ओके, अब सपोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल x at the time of t1 is here and at the time of t2 is also here. मतलब t टाइम पर कोई पार्टिकल इस या ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और t2 पर मतलब कुछ टाइम बाद भी वो इसी पोजीशन पर है, तो डिस्टेंस क्या होगा उसका 0. एंड बी पुट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, if we put the value of the distance in the formula, then the value will be 0. ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 0. मतलब किसी पार्टिकल की पोजीशन में यदि कोई चेंज नहीं आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है. ओके, ये यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आता है, पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो in this slide if we look at the second line, atom and molecules have kinetic energy. मतलब जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग. बिकॉज क्या है, हमेशा मूव करते रहते हैं, ऑल्दो नॉट नेसेसरली इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. हालांकि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, मतलब रैंडमली मूव करते हैं. द फास्टर मॉलिक्यूल मूव द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी. अब मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला है वो किस पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर. अब काइनेटिक एनर्जी है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और मास. अब बी से द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज. ओके, मतलब वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी. तो इन दिस लाइन द फास्टर मॉलिक्यूल मूव्स द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी. मतलब जो भी मॉलिक्यूल है वो जितनी तेज़ी से मूव करेगा उसकी उतनी ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी. ओके, अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर. मीन्स मैं बताया था कि थर्मल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी. ओके, इस लाइन में यही रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मूवमेंट
ऑफ द एटम, मतलब यदि कोई एटम मूव कर रहा है रेंडमली तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं अपन, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज द थर्मल एनर्जी इज द ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू द अनदर इज डिफाइंड एज हीट। अब यदि थर्मल कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैंने पास पास में रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं, बहुत से मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा, इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब खुद की काइनेटिक एनर्जी तो इस सिस्टम का खुद की थर्मल एनर्जी होगी। ऐसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर थर्मल एनर्जी कंपेयर टू जो ए सिस्टम है, एक ऐसे बोल रहे हैं बी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर बी सिस्टम में क्या है, पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर टोटल थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो थर्मल एनर्जी है वो हायर थर्मल एनर्जी से लोअर थर्मल एनर्जी की तरफ मूव करती है। अब इसी ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी और मैटर टू अनदर इज डिफाइंड एज द हीट। मतलब यदि थर्मल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी पासेस फ्रॉम द वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब थर्मल एनर्जी हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से, मतलब जो वार्म ऑब्जेक्ट है उससे कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ओके, जब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक उनका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, एंड अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी में। ओके, टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी में तो पहले टेम्परेचर के बारे में देखते हैं, टेम्परेचर होता क्या है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ये कोई सिस्टम है या ये कोई कंटेनर है जिसमें 50 मॉलिक्यूल हैं, क्या हैं, 50 मॉलिक्यूल। ओके, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100। ओके, अब अपन को क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 100/50। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, अच्छा चलो मान के चलो मैंने 5 मॉलिक्यूल्स लिए, क्या लिए, 5 मॉलिक्यूल्स लिए और एक जगह इकट्ठे किए। अब मैंने उनको टेम्परेचर पता करना है, तो अपन को निकालना है क्या है, उनका काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपन को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसे मान के सपोज करो एक मॉलिक्यूल ए है जिसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20। बी मॉलिक्यूल है जिसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी -10। सी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 30। डी है उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 और ई है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5। ओके, अब इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सिस्टम के अंदर, जिसमें मतलब ये सभी पाँचों के पाँचों मॉलिक्यूल हैं, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। या बोल सकती हैं कि पाँचों में से हर एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं, A + B + C + D + E, ओके, अपॉन 5। अब एवरेज जैसी तो निकालते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, अब टोटल करो, 20 - 10 कितना हो गया, 10, 10 30 कितना हो गया, 40, 40 + 10 50, 50 + 5 55। ओके, तो ABCD का जब अपन टोटल करेंगे तो 55 आएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करना है कितने से, 5, तो क्या निकल के आएगा, 11। तो अपन कह सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल जो इस सिस्टम के अंदर है, हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, 11। ओके, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आया, 11, और
टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर 55, क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी इधर क्या है 55। तो इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं अपन थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया होगा। थर्मल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द molecules or of the system. Okay, so अच्छा एक और चीज मैं बताऊं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो लगभग सेम होगी या सेम होगी। सपोज मैं बोल रहा हूँ कोई सिस्टम में है जिसमें 20 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 है। अब अपन को निकालना है क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 40। तो 40 इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती है, थर्मल एनर्जी। क्या होती है, थर्मल एनर्जी। ओके, अब यहां पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 20। ठीक है, सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 2, और थर्मल एनर्जी कितनी है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 40, और टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। ओके, अब मैं मान के चलो सपोज मैं 20 की जगह 30 कर दूं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वही रही है, ठीक है, लेकिन थर्मल एनर्जी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 60। तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो गई, सिस्टम की चेंज हो गई, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, कितनी है, 2। ओके, तो यह मेन डिफरेंस है। अब अपन आते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं। तो हाँ, तो एक साइड में थर्मल एनर्जी है और दूसरी साइड में क्या है, टेम्परेचर। ओके, सो देखो इस पॉइंट में क्या लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल नॉन एज द टेम्परेचर। उस सिस्टम के अंदर हर एक मॉलिक्यूल पर क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको बोलते हैं उस सिस्टम का टेम्परेचर। ओके, थर्मल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो थर्मल एनर्जी है वो किसी सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स नंबर पर डिपेंड नहीं करता। ओके, कितनी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। ओके, अब देखते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। हाँ, अच्छा इस पॉइंट को देखते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड इन कॉफी मेकर, मतलब यदि वाटर है वो कॉफी मेकर में उसको हीट किया जाता है तो एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, मतलब उनके बीच में मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और इंक्रीज हो गया तो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उसी को क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ।
तो जब अपन उसे थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि वो वाटर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ऑफ जब उसको हम हीट देते हैं तो उनके बीच में मूवमेंट इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और मूवमेंट यदि इंक्रीज होता है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, अब इसी से कोरिलेटेड है, देखते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ जैसे मान के चलो सपोज पहले जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो मान के चलो 20 है। ओके, एक सिस्टम के अंदर कितनी मॉलिक्यूल है, 10 है, ठीक है, और उनकी सबकी मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितनी थी, 20। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 200 इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्मल एनर्जी। ओके, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही तो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब मान के चलो मैंने इसको हीट दिया, क्या किया, हीट दे दिया, ट्रांसफर किया, इसको हीट दिया। ओके, तो हीट होने की वजह से इसमें क्या होगा, इनकी एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, बढ़ेगी कि नहीं, मतलब 10 से वो हो गई सपोज 15 हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 15। यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर उतना ही है, कितना है, सॉरी यहाँ पे ये 10 तो मॉलिक्यूल नंबर है और ये 20 क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज एवरेज काइनेटिक 20 से कितनी हो गई, 25, कितनी हो गई, 25, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम है। अब क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, अब देखें अपन इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 250। ओके, तो इनिशियल में टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कितनी थी, 200। ओके, लेकिन फाइनल जो मतलब हीट देने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 250। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि जब हीट देते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो पहले इस लाइन को पढ़ना है, देन उसके बाद थर्मल एनर्जी को पढ़ना है। ओके, तो फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ, व्हेन वाटर इज हीटेड इन द कॉफी मेकर द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। मतलब जब वाटर को हीट किया जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी, और एवरेज स्पीड इंक्रीज हुई तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, अब किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज हो रही है तो उसकी थर्मल एनर्जी भी चेंज होगी, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही है लेकिन टोटल है वो। ओके, अच्छा अब एक और डिफरेंस देखते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक मग है और एक है स्विमिंग पूल। ओके, स्विमिंग पूल, इन दोनों में क्या है, वाटर है। ओके, तो व्हाट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ दीज टू बॉडीज। ऑप्शन ए, सपोज swimming pool represented by the A and this represented by the B. So option 1 is the A, the thermal energy of A body is greater than B, and option 2, thermal energy of A body less than B, and third is the thermal energy of A equal to B. ओके, मतलब ये तीन ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि थर्मल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। थर्मल एनर्जी ए की जो है स्विमिंग पूल की जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी बी से, या बी से कम होगी, या ए और बी की थर्मल एनर्जी बराबर होगी। ओके,
और टेम्परेचर यहाँ पे सेम है दोनों का, इसका 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बताओ क्या होगा? कौन कौन सोच रहा है ए, कौन कौन सोच रहा है ए, नहीं सॉरी, कौन कौन सोच रहा है कि आंसर थर्ड होगा? जो भी सोच रहा है वो गलत है, बी भी गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्यों? देखो हाँ, मैंने बताया था कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, पहले डेफिनेशन पे देखते हैं। थर्मल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो अपन को यहाँ पे देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल किस पे ज़्यादा हैं, एक पॉट में है या फिर एक स्विमिंग पूल में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्विमिंग पूल में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू इस पॉट या कंटेनर के। ओके, सो थर्मल एनर्जी ऑफ द ए बॉडी इज ग्रेटर देन द बी, मतलब ए का जो थर्मल एनर्जी है वो बी से ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। लेकिन टेम्परेचर इन दोनों का सेम है। क्या है? सेम है। ओके, अब दो डिफरेंट बॉडी को यदि कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट रहते हैं। टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एक ही सिस्टम की जब बात करते हैं तब बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी डिपेंडेंट हो सकता है। कैसे? सपोज मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका कोई लिंक नहीं है स्विमिंग पूल से। ओके, इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, इंक्रीज हो सकती है जब इसको अपन हीट कर सकते हैं, लेकिन कम रहेगी कंपेयर टू स्विमिंग पूल से, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। ओके, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? थर्मल एनर्जी, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और टेम्परेचर ओनली किस पे डिपेंड करता है? ओनली एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूल नंबर ऑफ, सॉरी इसको दोबारा से इरेज करके मैं लिखता हूँ। सो total kinetic energy is equal to average kinetic energy of molecules multiply the number of molecules in the system in body या ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था। एंड दूसरा यूनिट का देखें तो यूनिट में भी यही होता है। यूनिट ऑफ द थर्मल एनर्जी क्या होती है? कैलोरीज होती है। बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी को ही अपने क्या बताया था वहाँ पर? हीट। क्योंकि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? हीट। तो हीट की यूनिट क्या होगी? कैलोरी। और सेम उसकी यूनिट क्या होगी? थर्मल एनर्जी की भी कैलोरी होगी। एंड टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट होता है। ओके, सो ये था मेन डिफरेंस कि टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी में क्या मेन डिफरेंस होता है। ओके, अब इसको अपन थोड़ा लिंक करेंगे फर्दर वीडियोस में, जो अपन नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें, कि इनका क्या यूज़ है, इसका टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी का क्या यूज़ है। ओके, वैसे ये कम ही लिंक है अपने इस टॉपिक से। ओके, बट मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कैम्पबेल बायोलॉजी को। और कैम्पबेल बायोलॉजी में ये 2 चैप्टर भी हैं, मतलब 2 हेडिंग है, थर्मल एनर्जी एंड टेम्परेचर। सो मैंने वो उनके बारे में डिस्कस किया है यहाँ पर। ओके, और मेरा जो सोर्स है वो कैम्पबेल बायोलॉजी एज वेल एज
गूगल से है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।